یہ جو عوام کی آخری امید تھی جماعت اسلامی کی شکل میں، وہ تو بجھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ امید کا یہ جو دیا تھا اگر بجھ گیا تو پھر عوام کے پاس آخری جو امید ہے پھر کیا ہوگی؟ ہم لوگ ہی اس قابل ہیں کہ جو لالی پاپ خود ایزیلی لے لیتے ہیں۔ اگر اس عوام کے پاس شعور ہے تو یہ شعور کس لیے ہے کہ صرف اپنے مفاد کے لیے ہے۔ ہم کب سوچیں گے ایک دوسرے کا؟ وہ کون تھے جن کے لیے کہا گیا ہے کہ یار ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے؟ وہ مسلمان تھے، ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ کلمہ پڑھتے ہیں ہم بڑے تڑلے سے، یہاں پہ جان دینے کی معاملہ آئے نا تو سب سے پہلے بھاگتے بھی ہم ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ میں نون لیگ پہ لانتی، میں کٹر پی ٹی آئی کو ہوں، میں خان صاحب کے ساتھ ہوں۔ خان صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی امید رکھتے ہیں خان صاحب آئیں گے انشاءاللہ آئیں گے، اور ایسے زوردار طریقے سے آئیں گے کہ سارے لوگ حیران پریشان رہ جائیں۔ لیکن ان کا دھرنا ٹھیک تھا، ابھی جاری رکھنا تھا، انہوں نے ختم نہیں کرنا تھا، کیونکہ انہوں نے بجلی کے خلاف ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ وہ الٹا 2.5 روپے یونٹ انہوں نے اور زیادہ کر دیا ہے، لیکن انہوں نے بہت غلط کیا، ابھی دھرنا نہیں ختم کرنا تھا، ان کو ٹیٹ کر کے دینا چاہیے تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں محمد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں سوچ نیوز۔ حسب روایت ہم آج پھر سے عوام کے اندر موجود ہیں اور عوام سے جاننے کی کوشش کریں گے جماعت اسلامی کے دھرنے کے حوالے سے کہ جماعت اسلامی 45 دن کا ٹائم لے کر یہاں سے جا چکی ہے۔ عوام اس حوالے سے کیا خیال رکھتی ہے، اور یہ جو عوام کی آخری امید تھی جماعت اسلامی کی شکل میں، وہ تو بجھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ امید کا یہ جو دیا تھا اگر بجھ گیا تو پھر عوام کے پاس آخری جو امید ہے پھر کیا ہوگی؟ آئیے عوام سے ان کا ریویو لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جماعت اسلامی کا دھرنا ختم ہو چکا ہے اور جماعت اسلامی 45 دن کا ٹائم لے کر جا چکی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں مہنگائی میں کوئی کمی آئے گی؟ یہ جو آخری امید تھی ہماری یہ بھی بجھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو کوئی اور امید بھی ہے ہمارے پاس؟ یہ تو اب اللہ ہی جانے ہمارے ملک کے ساتھ ہوگا کیا، ہمارے پاس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم جو کچھ کر سکتے تھے نا وہ کر گزرے، باقی اب اللہ کی طرف سے ہے۔ دیکھیں اب ہمارا رب ہمارے معاملے میں، ویسے تو میرے رب نے ہر طرف سے جو ہے ہمیں چھوٹ دی ہوئی ہے، پر اللہ کرے ہدایت آ جائے اس ملک کو۔ یہ سوچیں، چھوٹے طبقے کا بھی سوچیں، چھوٹوں کے طبقوں کے لیے بھی جو ہے نا کچھ معاملات کو بہتر کریں، باقی آگے میرے رب کے ہاتھ میں۔ ٹائم گزر چکا ہے اور جو ٹائم انہوں نے لیا اس ٹائم میں سردیاں آ جائیں گی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی وہ لالی پاپ تو نہیں ہے جو ہمیں دے دیا گیا ہے؟ ہم لوگ ہی اس قابل ہیں کہ جو لالی پاپ خود ایزیلی لے لیتے ہیں۔ اگر اس عوام کے پاس شعور ہے تو یہ شعور کس لیے ہے کہ صرف اپنے مفاد کے لیے ہے۔ ہم کب سوچیں گے ایک دوسرے کا؟ وہ کون تھے جن کے لیے کہا گیا ہے کہ یار ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے؟ وہ مسلمان تھے، ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ کلمہ پڑھتے ہیں ہم بڑے تڑلے سے، یہاں پہ جان دینے کی معاملہ آئے نا تو سب سے پہلے بھاگتے بھی ہم ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، تو اللہ پاک ہدایت دے، یہی دعا ہے کہ مالک اب کوئی ادھر وہ سلطنت عثمانیہ والا دور لے کے آئے تب بھی کچھ معاملات بہتر ہوں گے۔ باقی یہاں پہ بڑے جتنے بڑے عہدوں والے ہیں ان کے پیٹ ان کتنے ہی بڑے ہیں، اور ہم چھوٹے پیٹ والوں کا تو معاملہ ہی ہو رہا ہے نا، ہم نے تو کمانا ہے اور کھانا ہے۔ باقی اللہ پاک ہے جو بہتر کرے، امید ہے کہ انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی تو لے ہی آئے گا۔ مسلمانوں کے لیے کہا گیا تھا کہ مسلمان ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ ہم پوچھتے ہیں جی، جماعت اسلامی کا دھرنا ختم ہو چکا، اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا لالی پاپ تو نہیں تھا؟ سر لالی پاپ بھی تھا، اور کیا، ہمارے 15-16 دن جو ہے جتنا ہم ذلیل ہوئے ہیں نا وہ ہمیں پتہ ہے۔ ہمارے بچے یقین مانے رات کو جو ہے نا بھوکے سو جاتے تھے، تو یہ اپنا آئے تھے کہ ہم چیزیں سستی کریں گے۔ دودھ جو تھا جب یہ نہیں تھے 200 روپے کلو تھا، اب 220 روپے ہو گیا، کیونکہ سستا نہیں ہوا، اوپر گیا نا، 20 روپے اوپر گیا۔ تو ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا، لالی پاپ ہی دے کے چلے گئے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا۔ اس کے علاوہ کوئی اور امید، کوئی اور دیا نظر آتا ہے؟ سر اس اللہ پہ امید ہے، ان پہ کسی پہ بھی نہیں امید ہے، کسی بندے پہ بھی، جتنے بھی ہیں نا سب یہ بس لالی پاپ ہی دینے والے ہیں، اس اللہ پہ امید ہے، بس اللہ کی ذات کے آسرے پہ نکلتے ہیں، شام کو جو ہے اللہ پاک دے دیتا ہے، بچوں کے لیے رزق لے جاتے ہیں۔ باقی یہ ہمارے پاس رکشا بھی رینٹ کا ہے، اور قرضے ہی ہو چکے ہیں، ہم کافی سارے قرضے ہی ہو چکے ہیں۔ دن کو جو ہے نا سارا دن سمجھ لے کے قرضیوں کے فون آتے ہیں، ہم ان کو اتنا لارے لپی لگا رہے ہیں کہ اب
आएंगे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, पता नहीं कब आएंगे, ये अल्लाह को पता है कब आएंगे, हमें तो कोई खास उम्मीद नहीं। आवाम ये कह रही है कि हम अपने जेब से पैसे लगाकर और 8-10 दिन इनके इंतज़ार में थे कि शायद कुछ ऐसा हो जाए कि जो हमारे हक़ में अच्छा हो, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ और बजाय अच्छा होने के ये हमारे ही हक़ में बुरा हुआ। दूध की बात की कि दूध 200 रुपये किलो था और अब 220 रुपये किलो हो चुका है। जमात इस्लामी का जो धरना है वो ख़त्म हो चुका है। क्या समझते हैं ये जो 8-10 दिन या 12 दिन ये जो गुजरे हैं हमारे, ये कहीं हमें लॉलीपॉप तो नहीं दिया गया? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन देखो क्या होता है। लॉलीपॉप हमको तो अभी समझ नहीं आया क्या करना है, लेकिन उनका धरना ठीक था, अभी जारी रखना था, उन्होंने ख़त्म नहीं करना था, क्योंकि उन्होंने बिजली के खिलाफ अभी तक कुछ भी नहीं किया है। वो उल्टा 2.5 रुपये यूनिट इन्होंने और ज़्यादा कर दिया है, लेकिन इन्होंने बहुत गलत किया। अभी धरना नहीं ख़त्म करना था, इनको टेढ़ करके देना चाहिए था। मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि जमात इस्लामी ने धरना ख़त्म कर दिया, तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये आवाम को एक लॉलीपॉप दे दिया गया? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि उन्होंने हो सकता है पैसे शैसे लिए हों और निकल गए हों, अपना धरना ख़त्म कर दिया हो, आवाम जाने उनका काम जाने, अपना कोटा पूरा हो गया उनका, तो वो कोटा पूरा किया और निकल गए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा कोई और दिया नज़र आता है, कोई और मतलब जगह नज़र आती है किसके आसरे पे अब हम जो है ना दोबारा उठ सकेंगे, या कोई ऐसा दिया जिसकी हम अब इंतज़ार करें, कोई ऐसा बंदा जिसका इंतज़ार करें? इमरान खान ही है, इसके अलावा तो और कोई भी नहीं है। इमरान खान का इंतज़ार। इमरान खान उसको इनको सबको आजमा लिया। इमरान खान को एक दफ़ा यार ठीक किया, लेकिन ये तो 35 साल से हुकूमत कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया है कि आटा सस्ता किया और सब चीज़ें डबल कर दी हैं। बिजली 25-25, 30-30 हज़ार रुपये एक घर का एक पंखा चल रहा है, उसका बिल आ रहा है। ये कौन सा पाकिस्तान है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है सर, जमात इस्लामी का धरना ख़त्म हो चुका है और 8-10 दिन आवाम तंग हुई और उसके बाद आवाम के पास जो चीज़ें थी, बिजली थी, दूध थी, मतलब ये जो चीज़ें थी ये बजाय इनका रेट कम होने के ज़्यादा हो गया और 45 दिन का टाइम लेके जमात इस्लामी तो उठ के चली गई। तो क्या समझते हैं कि ये कोई आवाम को लॉलीपॉप तो नहीं दिया गया? मैं कहता हूँ कि जमात इस्लामी का धरना बिल्कुल जायज़ था और हम अवाम पाकिस्तानी अवाम ने उसका साथ देना था, नहीं दे सके। क्यों कि जब हुकूमत गठी नहीं खड़ी होगी, जिंदा मिसाल ले लें कश्मीर की, सारी अवाम खड़ी हुई, बिजली सस्ती हुई। यहाँ पर अवाम पर गरीब कुचला जा रहा है और अमीर से अमीर तर हो गया। उसके लिए तो बिजली फ्री है, हर चीज़ AC फ्री है, हर चीज़ फ्री है। हम मज़दूरों से पूछो कि हम मज़दूरी करके किस तरह घर के अखराजात चला रहे, किस तरह बच्चों की फ़ीसें डबल दे रहे, किस तरह बुक दे रहे, किस तरह बिल हमारे पास आ रहे और किस तरह हर चीज़ पर टैक्स हम दे रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ के साथ अगर पाकिस्तानी पंजाब वाले साथ देते हैं, सिंध वाले नहीं देते, सिंध वाले बलूचिस्तान वाले साथ नहीं। पाकिस्तानी कौम को चाहिए कि वह इकट्ठे हो जाए, मुत्तहिद हो जाए, ताकि महंगाई में कमी होनी चाहिए। जमात इस्लामी वाला चिराग तो अब तकरीबन बुझता हुआ नज़र आ रहा है, तो क्या समझते हैं कि इसके अलावा कोई और चिराग है जिसकी उम्मीद अभी की जा सके? मैं समझता हूँ कि लोग कहते हैं कि PTI में महंगाई थी, लेकिन मैं इमरान खान का हमायती हूँ, बतौर सपोर्टर मेरी जान तक हाजिर है। कोई महंगाई नहीं थी। कोविड-19 का भी मुश्किल तरीन दौर था, सब मुश्किलात के बावजूद उसने मुल्क को संभाला हुआ था और ना ही कर्जा लिया, ना ही उस तरह का हम पर लोड डाला और अवाम भी बिल्कुल हर चीज़ मुनासिब रेट पर थी और ना ही पेट्रोल महंगा था, ना ही बिजली के बिल थे। फ़ख्र पाकिस्तान जी हाँ, बच्चों की पहचान है भाई, इसके बगैर तो बच्चों की पहचान तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये फ़ख्र पाकिस्तान बन चुका है। जी जी, तो बल्कि हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का बाजा पहले ही बज चुका है, अब ये बाजा बजाने की ज़रूरत नहीं है। जी जी, बहरहाल हम पाकिस्तान का कसूर नहीं है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर माल दौलत से नवाजा हुआ, हर नेमत पाकिस्तान में मौजूद है। हम पाकिस्तानियों का कसूर है, हम अवाम का कसूर है, पाकिस्तान का कोई कसूर। हम पाकिस्तान के साथ कल भी थे, आज भी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ताबिंदाबाद, हमेशा कायम रहता। जमात इस्लामी का जो धरना है जी, वो तो ख़त्म हो चुका, तकरीबन जो उससे एक उम्मीद थी, वो जो उम्मीद की किरण थी वो तो बुझ चुकी है। हाफ़िज़ नईम साहब ने बड़ी मेहनत की है। मैं भी 1-2 दिन गया हूँ, मैंने कहा चलो जो बिल शिल आए हैं लोगों के, वो कराची से आकर इधर हमारे लिए बैठा है, मगर
कोई उस पर कान नहीं धर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे। और देखें आप, और लोग बेचारा हफ्ता 10 दिन बैठा रहा इस गर्मी में, हम भी गए हैं मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और हुकूमत देखें, वो आपको पता है किसकी हुकूमत है, वो किधर जा रही है। कितना बिल आया इसका? बिल मैंने तो 16 लगाए हुए हैं। 16 लगाया। नून लीग के सपोर्टर हैं? मैं नून लीग पे लाना, तो मैं कट्टर पीटीआई का हूँ, मैं खान साहब के साथ हूँ। खान साहब के साथ पीटीआई उम्मीद रखते हैं खान साहब आएंगे? इंशाल्लाह आएंगे, और ऐसे ज़ोरदार तरीके से आएंगे कि सारे लोग हैरान परेशान रह जाएंगे। अभी भी उम्मीद है कि खान साहब दोबारा आएंगे और इनको हिला कर जाएंगे? खान साहब, मेरा इंशाल्लाह जितना इरादा है और मेरा यकीन है, अगले साल अक्टूबर में उनकी हुकूमत होगी। ये मैं आपको पेशेंट को आज दे रहा हूँ, अक्टूबर में खान साहब की हुकूमत होगी। इस अक्टूबर नहीं, नेक्स्ट अक्टूबर में सब धर्म मरम हो जाएगा निज़ाम, खान साहब जब निकलेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। उम्मीद की आखिरी गिरन जमात इस्लामी का धरना ख़त्म हुआ, जी जी। अब बिल जमा कराना पड़ेगा। क्या समझते हैं, करा लेंगे जमा? यार लाजिमी करना पड़ेगा, करना वो पड़ेगा। लोग तो भाग गया ना, वो भाग गया। वो भाग गया। इसके अलावा किसी और पर उम्मीद है कि अब वो आए? सिर्फ खान से बगैर। कौन सा खान? इमरान खान पे। इमरान खान से। जी वो आएगा इंशाल्लाह। पहले की तरह भागना ना जाए। नहीं, वो भागने वाला नहीं। अगर भागता तो साल हो गया, फिर वो ये बना तो अभी तक नहीं बनाया जी, मैं बीमार हो गया, मैं ये हो गया, ये हो गया, वो तो भागने वाला नहीं। इंशाल्लाह वो उधर ही मर जाएगा, लेकिन बार भागने वाला नहीं। वो तो बार बार कहते हम पाकिस्तान है, जीना मरना पाकिस्तान में है। नवाज शरीफ की तरह तो नहीं जी दवाई बना रहे, बस दवाई का बना रहे हो, भाग जाते। साल हो गया, तुमने अभी तक बीमारी का कुछ सुना? मतलब बीमार नहीं है अभी इमरान? अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमार नहीं। और उसके भागने का कोई चांस भी नहीं? नहीं जी, इंशाल्लाह आएगा वो। आएगा तो यहाँ पर आकर हिला कर भी जाएगा या फिर? इंशाल्लाह मुल्क बिल्कुल सही हो जाएगा अगर वो आ गया। पहले तो उसका बदकिस्मती यही तो जो कोरोना आ गया, समझ आ गया, कोरोना ने मुल्क ने बेड़ा गर्क किया। फिर भी जो उसने मुल्क बिल्कुल सही चला है, अपने दौर में उससे सही चला? वो बिल्कुल ज़बरदस्त चला है। इसी तरह महंगाई तो नहीं था जिस तरह आजकल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जमात इस्लामी धरना देकर उठकर जा चुकी, क्या समझते हैं कि ये कोई लॉलीपॉप तो नहीं दिया गया हमें? मैं तो ये समझता हूँ कि लॉलीपॉप तो हमें शुरू से दिया जा रहा है, ठीक है, और जो हमें नज़र नहीं आ रहा है। आवाम को तंग किया हुआ है इन्होंने, रोड ब्लॉक की हुई है, आवाम को मुश्किल हो रही है, जिन्होंने ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेजेस में जाना है, सबको मुश्किल पेश आ रही है। तो मुझे तो लगता है कि शुरू से लॉलीपॉप दिया हुआ है, कोई इसमें मकसद नज़र नहीं आता कि इनका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मुझे तो नहीं लगता कि कोई मेन इनकी कोई बात है, कोई मेन पॉइंट है इनका, मुझे तो नहीं लगता कोई मकसद है इनका। क्या समझते हैं, कोई उम्मीद की इसके अलावा किरण है हमारे पास? इसके अलावा कोई किरण नहीं है, आवाम को खुद खड़ा होना पड़ेगा। आपको बांग्लादेश का वाक़या आपके सामने है, जो स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये आवाम को अपने हक़ के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। इमरान खान यही कहते कहते पिट के रह गया, लेकिन आवाम यहाँ पे नहीं खड़ी होती। आवाम कहती है बस हमारा पेट भर रहा है, ठीक है, बस चलते रहना चाहिए, बस यही हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। क्या समझते हैं ये जो आगे आने वाले जो बिल्स हैं, इनमें कोई कमी वाकई होगी जो 45 दिन का टाइम लिया? अभी जो मैंने अपडेट्स देखी हैं इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ तो अभी 2 रुपये और महंगी हो गई है। हालांकि इनका धरना भी था, इन्होंने फिर क्या जदोजहद की? अगर इनकी कोई बात नहीं मानेगी, ये कह रहे हैं मुज़ाकरात किए हैं, बजाय कहाँ किए हैं मुज़ाकरात? बजाय नीचे जाने के और ऊपर चला, और ऊपर चली गई है, ठीक है, और वो जाना पड़ रहा है क्योंकि आपको मुल्क के कर्जे उतारने हैं, सीधी सी बात है। मुल्क का कर्जा नहीं उतारेंगे तो IMF वाले आपको कर्जा कैसे देंगे वापस? आप क्या समझते हैं, कर्जे वाकई उतर रहे हैं या फिर ये भी? नहीं जी, आपके सामने आप भी बचे नहीं है, मैं भी बचा नहीं हूँ, सबको नज़र आ रहा है, कर्जे लिए जा रहे हैं, दिए तो जा ही नहीं रहे ना, जिसकी वजह से आपको महंगाई करनी पड़ रही है। IMF क्या है, आपको महंगाई करनी पड़ जाती है, आवाम से पैसे लेके आपको उनका कर्जा उतारना पड़ता है। तो ये इसलिए ये महंगाई वगैरह हो रही है, बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, गैस महंगी हो रही है, इसी वजह से हो रही है, ताकि आवाम का खून चूस के आप पैसे जो है उनको वापस कर सके। लेकिन वापस तो फिर भी नहीं हो रहे, वापस नहीं हो रहे, तो इनकी अपनी जेबें भर रही हैं। तो क्या समझते हैं कि फिर अब कोई आखिरी हल को जो हम जिसके हवाले से बात करें, कोई उठें, क्या करें? कुछ आखिरी हल खौफ खुदा ही है। अगर सारे मिल तो सकते नहीं है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो दुआ ही कर सकते हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। इज्तिमाई तौर पर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग सकते हैं और कुछ भी नहीं हो सकता। आवाम ये कहती है कि इज्तिमाई तौर पर माफ़ी मांगे अल्लाह ताला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमात इस्लामी का धरना ख़त्म हो चुका, जी जी भाई। क्या समझते हैं, कोई कहीं हमें लॉलीपॉप तो नहीं दिया गया? नहीं 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 दिया गया। नहीं। ये 45 दिन में काम हल हो जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद अल्लाह पे होनी चाहिए। अल्लाह से उम्मीद है, और जमात इस्लामी के हवाले से हमारा इंशाल्लाह। जमात इस्लामी जब उठकर गई है तो 2 रुपये बिजली बढ़ाई गई है, ये तो फिर हमारी हुकूमत का पुराना रवाज है ना। नहीं, हुकूमत का रवाज है। आप कह रहे हैं कि
होगा वो तो नहीं, ये तो हमारी हुकूमत का जो पुराना रवाज है वो चल रहा है वो चल रहा है। जी तो क्या समझते हैं कि ये लॉलीपॉप मिल गया आप जी। उन्होंने बस धरना खत्म करना था, वो कर लिया। वो कर लिया और लॉलीपॉप आपको दे दी। लॉलीपॉप दे दिया। नाज़रीन, ये था आवाम का रिव्यू। आवाम कुछ नहीं जानती, आवाम को बस इतना पता है कि जब जमात इस्लामी यहाँ से उठ कर गई तो वो अपना जो मकसद है वो हासिल करके नहीं गई। ये जो दिया गया है वो लॉलीपॉप है और आवाम अभी एक बार फिर से इमरान खान से उम्मीदें लगा कर बैठी है कि शायद खान दोबारा आए और आवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करे। तो हम देखते हैं कि आया इमरान खान वापस आता है या नहीं आता, या आवाम का सत्यानाश इसी तरह होता रहेगा। मैं मोहम्मद फ़ारूक और आप देख रहे हैं सोच न्यूज़। Yeah.